آپ سبھی کا خیر مقدم ہے آپ کے اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل چوک اینڈ ڈسٹر اکیڈمی میں ایک بار پھر سے۔ امید ہے آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں بیٹھ کے جو ہے وہ ایگزام کی تیاری کر رہے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے ہم لوگ ڈیلی ایک PYQ لے کر حاضر ہوتے ہیں، جس میں ہم لوگ بات کرتے ہیں سینٹرل یونیورسٹی انٹرنس ٹیسٹ 2026 کی PG MA اردو کی، جو آپ کا امتحان جو ہے وہ مارچ میں ہونا طے پایا گیا ہے۔ ابھی جو ہے وہ آپ کی ریویژن کلاس چل رہی ہیں، لنک نیچے آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، یا پھر آپ لوگ ہمارے واٹس ایپ نمبر 9045220432 پر بھی رابطہ کر کے بیچ سے جڑ سکتے ہیں۔ اور آج کے ہمارے سیشن میں ایک اہم پیپر ہے سینٹرل یونیورسٹی انٹرنس ٹیسٹ کا، جو آپ کا جواہر لال نہرو یونیورسٹی، دہلی یونیورسٹی، اس کے ساتھ ساتھ BHU مانو یعنی کہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، جامعہ ملیہ اسلامیہ اور AMU یعنی کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں جو ہے وہ یہ آپ کو کارآمد ہوگا آپ کی تیاری میں۔ تو چلیے پھر بنا کسی دیری کے آج کے سیشن کو شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ لوگ بھی بیچ میں جڑنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں لنک ہے، وہاں سے جڑ سکتے ہیں۔ تو چلیے پہلا سوال ہے، یہ آپ کو میچنگ دیے گئے ہیں، مصرع اول دیا گیا ہے اور سامنے جو ہے وہ اس کے مصنف کا نام دیا گیا ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ آپ کو کیا کرنا ہے، میچنگ کرنا ہے۔ تو پہلے سوال کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا آپشن 2، یعنی کہ A کا آپ کا ہو جائے گا 3، یہ میر تقی میر کا شعر ہے۔ اس کے بعد B یہ ہو جائے گا 4، یہ غالب کا شعر ہے۔ اس کے بعد C یہ فرسٹ کا ہو جائے گا، اور D جو ہے وہ سیکنڈ کا ہو جائے گا، یعنی کہ مومن خواہ مومن کا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں دوسرے سوال کی طرف۔ یہ جو ہے وہ ایک طریقے سے جملے دیے گئے ہیں، ان کو جو ہے وہ آپ کو آرڈر میں لگانا ہے کہ کون سا پہلے آئے گا اور کون سا جو ہے وہ بعد میں آئے گا۔ جیسے 2-3 گھڑی رات گئے تک نیاز حاصل تھا، خانم صاحب کا دربار کرتے تھے سر و شام سے، اور یہ ہے ان کی ہر ایک نوچی کی خدمت میں۔ تو ان سب کو جو ہے وہ کیا کرنا ہے، آپ کو ترتیب سے لگانا ہے۔ تو اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا آپشن 3، یعنی کہ D پہلے آئے گا، A دوسرے نمبر پر، C تیسرے نمبر پر، E چوتھے نمبر پر اور B جو ہے وہ 5ویں نمبر پر۔ اگلا سوال ہے، جیلانہ بانو کی کتاب ایوان غزل کا تعلق کس صنف سے ہے؟ یہ نظم کا مجموعہ ہے، غزل کا مجموعہ ہے، افسانے کا مجموعہ ہے یا ناول ہے؟ کوشچن نمبر 3 کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 4، یہ ایوان غزل جو ہے وہ جیلانی بانو کا ناول ہے۔ آگے بڑھتے ہیں کوشچن نمبر 4، پھر سے جو ہے وہ آپ کو ان کی ترتیب لگانی ہے۔ تو کوشچن نمبر 4 کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 3، یعنی کہ پہلے B آئے گا، آپشن A یعنی کہ میر کی شاعری، اس کے بعد D اپنی بعض خصوصیتوں کی وجہ سے اردو زبان میں نہ صرف ممتاز حیثیت رکھتی ہے بلکہ اپنی نظیر نہیں رکھتی۔ یہ جو ہے وہ اس طریقے سے 5 آپشن زمانی ترتیب یا کہہ سکتے ہیں ترتیب وائز لگانے ہیں۔ اگلا سوال ہے، پراکرت کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ 3، 4، 5 یا 6؟ تو پراکرت کی 3 جو ہے وہ قسمیں ہوتی ہیں، پہلی پراکرت، دوسری پراکرت اور تیسری پراکرت۔ آگے بڑھتے ہیں کوشچن نمبر 6 کی طرف، جس صنف شاعری میں کسی کی موت پر اس کے اوصاف بیان کر کے رنج و غم کا اظہار کیا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم لوگ مرثیہ کہتے ہیں۔ آپشن 2 جو ہے وہ کریکٹ آنسر ہو جائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں کوشچن نمبر 7 کی طرف، ان میں سے آپ کو بتانا ہے کن کا تعلق ترقی پسند تحریک سے ہے؟ شمس الرحمن فاروقی، گوپی چند نارنگ، سجاد ظہیر، نون میم راشد یا اسمک چغتائی؟ تو آپ کو 2 آپشن دکھائی دیے ہوں گے، سجاد ظہیر اور اسمک چغتائی کا تعلق جو ہے وہ کس سے ہے؟ ترقی پسند تحریک سے ہے۔ اب آپشن میں دیکھتے ہیں C اور E جو ہے وہ کہاں ہے، یعنی کہ پہلے ہی آپشن ہے، تو صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن فرسٹ، باقی جو ہے وہ ترقی پسند تحریک سے وابستہ نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے، تذکرہ گلشن ہند کس کی تصنیف ہے؟ گلشن ہند جو ہے وہ اردو زبان میں لکھا گیا پہلا تذکرہ ہے، اور یہ لکھا گیا 1801 میں۔ اسے لکھا تھا مرزا علی لطف نے۔ کہاں پر؟ فورٹ ولیم کالج پر۔ اور فورٹ ولیم کالج میں کس کے کہنے پر؟ تو آپ لوگ بتا سکتے ہیں،
जॉन किलक्रिस्ट के कहने पर लिखा था। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ पर जो है आपको बताया गया है नस्र की वो सिन्फ है जिसमें साहिब तर्ज अदीब किसी भी ख़याल को बेतकल्लुफ़ी के साथ बग़ैर किसी मंतकी तरतीब के दिलकश और ख़ूबसूरत बनाकर पेश करता है। डैश झेल के मुनासिब लफ्ज़ से खाली जगह को भरें। मज़मून होता है, अफसाना होता है, सफ़रनामा होता है या इंशाइया होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, वो इंशाइया होता है। अगला सवाल है, मज़कूरा सवाल के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा है तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। दूसरा है दर्जे बाला शायरी हिस्सा का ताल्लुक़ सिनफ़ गज़ल से है। बिल्कुल, तो ये जो था दोनों सही हो जाएंगे। ये मोमिन खा मोमिन है, उनका एक शेर है, तो ये दोनों ऑप्शन दुरुस्त हो जाएंगे। पहला मोमिन का शेर है और दूसरा ये गज़ल का शेर है। अगला सवाल, वो फ़ेल जिसमें किसी काम का असर सिर्फ फ़ाइल तक महदूद रहे क्या कहलाता है। फ़ाइल होता है जो काम करता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, तो सही आंसर हो जाएगा फ़ेल लाजिम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अल्ताफ़ हुसैन हाली ने गालिब की सवाने उमरी जिसे हम लोग यादगार गालिब के नाम से जानते हैं वो कब लिखी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1897 में उसे लिखी यादगार गालिब, और यह गालिब पर लिखी गई पहली तसनीफ़ थी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल है हमारे पास 13वां, ऊद हिंदी का ताल्लुक़ या ऊद हिंदी किसके खतूत का मजमूआ है। तो ये मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब के खतूत का मजमूआ है ऊद हिंदी। इनका एक और खतूत का मजमूआ होता है जिसका नाम होता है उर्दू मुअल्ला। तो ये दोनों तसनीफ़ ख़ास तौर पर गालिब की एग्ज़ाम के हवाले से आती हैं। अगला सवाल है, दास्तान सब्रस के मुसन्निफ़ का नाम क्या है। तो सब्रस के मुसन्निफ़ का नाम है मुल्ला असदुल्ला वजी, यानी कि ऑप्शन ए, और ये लिखी गई थी 1635 में। और अगर हिजरी पूछा जाए तो आप लोग बता सकते हैं 1045 में। और इसमें यानी कि सब्रस को जो है वो कुतुब शाही ख़ानदान के बादशाह अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर जो है ये लिखी गई थी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। झेल में से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की तसनीफ़ का नाम क्या है। तो ये सारे इसमें खतूत के मजमू दिए गए हैं। तो खतूत का मजमू गुबार ख़ातिर है जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का है, और ये 1946 में जो है वो मुरतब किया गया था मालिक राम के ज़रिए। तो अक्सर एग्ज़ाम में आता है, तो याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, झेल में दो बयानात दिए गए हैं। पहला बयान है, अहयाम गोई उर्दू की पहली अदबी तहरीक थी। ऑप्शन ए या बयान ए। ऑप्शन 2 है या बयान 2 है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद का ख्याल है कि अहयाम गोई हिंदी दोहों के ज़ेर असर परवान चढ़ी। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 16, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि दोनों बयान जो हैं वो क्या है, दुरुस्त है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, दर्जे बाला नावलों की ज़मानी तरतीब से लगानी है कि पहला जो है वो कौन सा नावल लिखा गया है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो सबसे पहले मिरातुल उरूश आता है जो लिखा गया है 1869 में। तो जो पहला है तो हमारे पास ऑप्शन ए ही आ जाएगा, यानी कि पहला EBDAC करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर जो है फिर से वही आपको जुमलों को जो है वो सही तरतीब लगानी है क्वेश्चन नंबर 18 की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये शेर किस शायर का है। क्वेश्चन नंबर 19 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये गालिब का है। क्वेश्चन नंबर 20 यानी कि 20, वो लफ्ज़ जो फ़ेल पर ख़त्म होते हैं और अपने लुग़वी मायने की जगह दूसरे मायने में इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, उसे हम लोग मुहावरे कहते हैं। झेल में दो बयान दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही है या कौन सा गलत है। फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम मकसद अंग्रेज़ों को हिंदुस्तानी शफ़ाक़त से वाकिफ़ कराना था। ऑप्शन 2 है या बयान 2 है, मीर अमन दहलवी की तसनीफ़ बागो बहार दिल्ली की तहज़ीब की नुमाइंदा है। बिल्कुल, दोनों ही बयान क्या है, दुरुस्त है। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चार मिसरों पर मुश्तमिल किस सिन्फ़ शायरी का पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफ़िया होता है। तो यह आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि रुबाई का होता है। और तीसरा जो है वो क्या होता है, जुदा गाना होता है रुबाई। और रुबाई को हम लोग जो है वो
दो बीती भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये एक मैचिंग दी गई है, इसमें बताना है कौन सा सही है। अफसाना मजाज लखनवी बिल्कुल गलत है। तनकीद कलीमुद्दीन अहमद बिल्कुल ठीक है। नावल मौलाना आज़ाद गलत है। ड्रामा टेढ़ी लकीर बिल्कुल ठीक है। और इसके अलावा जो है वो तज़किरा आब हयात। तो इसमें जो है वो बताना है कि आपको दुरुस्त जोड़े की क्या करनी है, निशानदेही करनी। सॉरी, ड्रामा तो नहीं है, टेढ़ी लकीर नावल है, तो ई हो जाएगा, यानी कि बी और ई करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, फिर से बयान दिए गए हैं। गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, बिल्कुल सही बात है। उर्दू गज़ल में हिंदुस्तानी तहज़ीब की अक्कासी मिलती है, बिल्कुल, तो दोनों बयान दुरुस्त हो जाएंगे, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नज़्म सुबह आज़ादी के शायर कौन है? क्वेश्चन नंबर 25 और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ये फैज़ अहमद फैज़ की है, जिनकी पैदाइश 1912 में होती है और वफ़ात 1983 में। अगला सवाल, मज़कूर सवाल में दो हिस्से हैं, बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। आगे है, फ़िल्म अवामी ज़राए तरसील का अहम जुज़ है। बयान 2, यह हिस्सा 2 है। फिल्म का ताल्लुक़ अलकनाड मीडिया से है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन ए, यानी कि दोनों बयान क्या हैं, बिल्कुल दुरुस्त हैं। क्वेश्चन नंबर 27, इनमें से किसका ताल्लुक़ सिनफ़ गज़ल से है, ये आपको जो है वो बताना है क्वेश्चन नंबर 27 का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, यानी कि बी और डी जो है वो गज़ल से ताल्लुक़ रखते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 28, इसमें जो है वो मैचिंग दी गई है कि कौन सा अफसाना या कौन सी तसनीफ़ जो है वो मुसन्निफ़ की है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी, आपको जो है वो मैचिंग करना है। क्वेश्चन नंबर 28 में अगर हम लोग देखें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ए का नया कानून किसका है, आपको पता है ये सादत हसन मंटू का है। इसके बाद बी फोटोग्राफर कुर्रतुल ऐन हैदर का है। ज़िंदगी के मोड़ पर कृष्ण चंद्र का है। और अलाव जो है वो सुहेल अजीमाबादी का है। ऑप्शन 3 दुरुस्त हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर से जो है वो इसमें दिया गया है, एक शेर के दूसरे मिसरे जुमरे दिए गए हैं, उनको जो है वो क्या करना है, मिलाना है। तो फहरिस्त एक में शेर दिया गया है और फहरिस्त में जो है वो क्या दिया गया है, दूसरा शेर दिया गया है। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन हो जाएगा 3। आप लोग जो है वो उसे मिला सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। झेल में फिर से दो जुमले दिए गए हैं, इसमें नज़म है और नज़म निगार है, उनको आपको जो है वो क्या करना है, मैचिंग करना है। जैसे अगर हम लोग बात करें, मुफलिसी नज़ीर अकबर आबादी की है। मना जाते बेवा अल्ताफ़ हुसैन हाली की हैं। अल्लामा इकबाल की खिज़र राह और अख्तर उल ईमान की याद है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं, ए का 3 हमें कहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर, और बी का 4 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर। फिर से दो हिस्से दिए गए हैं। ये मसाइल, ये तसव्वुफ़, ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते जो ना बादा ख़राब होता। पहला ये गज़ल का मतला है, ठीक है, और दूसरा हिस्सा पहला शेर है और दूसरा पूछा गया है कि ये गज़ल का मतला है। तो इसमें जो है वो आपको इन दोनों को सही जानते हुए ऑप्शन के अकॉर्डिंग सवाल का जवाब देना है क्वेश्चन नंबर 31 का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है दुरुस्त ए, और हिस्सा ए दुरुस्त है और हिस्सा 2 गलत है, क्योंकि वो मतला नहीं है, हाँ, लेकिन वो गालिब का शेर है। अगला सवाल है, बयान ए, अल्ताफ़ हुसैन हाली ने गालिब की सवानें यादगार गालिब के नाम से लिखी, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है, सफ़रनामा रूम व मिस्र व शाम हाली का सफ़रनामा है, ऑप्शन हिस्सा गलत है, ये रूम व मिस्र व शाम हाली का नहीं है, बल्कि किसका है, ये शिबली नोमानी का है। और जो कब लिखा उन्होंने, 1894 में, और ये कब किया था, 1892 में सफ़र किया था, और इसे लिखना शुरू किया था 1893 में, और मुकम्मल हुआ 1894 में। तो इसीलिए जो है वो पहला बयान सही है और दूसरा बयान जो है वो गलत है। अगला सवाल, झेल में से कौन दिल्ली कॉलेज के उस्ताद नहीं है, यहाँ पर आपको बताना है उस्ताद नहीं है, क्वेश्चन नंबर 33 का। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, मौलवी चिराग अली का ताल्लुक़ दिल्ली कॉलेज से नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सर सैयद के ज़रिए साइंटिफिक सोसाइटी कब और कहाँ कायम हुई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये गाज़ीपुर में हुई और 1864। हालांकि यहाँ पे जो है वो 1862 आना चाहिए था, सही आंसर ये होगा, क्योंकि 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी को गाज़ीपुर से अलीगढ़ जो है वो मुंतकिल कर लिया गया था। अगला सवाल है, नावल उमराव जान अदा पहली बार कब शाये हुआ,
تو پہلی بار کا آپشن ہو جائے گا پہلا ہی 1899 اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں، یہاں پر پھر سے وہ آپ کو زمانی ترتیب لگانی ہے کہ پہلا کون سا آپشنس آئے گا اور پھر کون سا جو ہے وہ آپشنس آئے گا۔ ہمارے پاس ہے کوشچن نمبر 36 اور اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 2، یعنی کہ پہلا آئے گا زبان اردو کے ظہور پر خیال کرے اور اس کی تانیت پر نگاہ کرے تو اس میں نثر سے پہلے نظم آئے گی۔ تو اس طریقے سے آپ لوگ اسے کریکٹ کر سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، قصیدہ کس زبان کا لفظ ہے؟ تو بڑا ہی آسان سوال ہے، آپشن ہو جائے گا 3۔ قصیدہ عربی زبان کا لفظ ہے جو لفظ قصد سے جو ہے وہ نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا۔ آگے بڑھتے ہیں، کتاب آب حیات کے مصنف کا نام کیا ہے؟ مولانا الطاف حسین حالی، مولانا ابوالکلام آزاد، محمد حسین آزاد یا مولانا شبلی نعمانی۔ تو آب حیات کا تعلق جو ہے وہ محمد حسین آزاد سے ہے، جو 5 ابواب پر مشتمل ہے اور اس میں 29 شعراء کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے، اور یہ کتاب پہلی بار 1880 میں شائع ہوئی اور دوبارہ 1883 میں اردو اکیڈمی لکھنؤ سے شائع ہوئی۔ آگے بڑھتے ہیں، افتخار رستم ہے اس مصرعے میں کون سی صنعت کا استعمال کیا گیا ہے؟ کوشچن نمبر 39 ہے، تو اس میں جو ہے وہ استعارہ کا کیا گیا ہے، آپشن 2 کریکٹ آنسر ہو جائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف، کلیم الدین احمد معروف ہیں کیسے شاعر ہیں یا کیا ہے؟ بحیثیت خاکہ نگار، بحیثیت انشائی نگار، بحیثیت نقاد اور بحیثیت افسانہ نگار۔ کوشچن نمبر 40 ہے، تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا کلیم الدین احمد کا تعلق جو ہے وہ کس سے ہے؟ یہ بحیثیت نقاد ہے۔ تو یہ آج ہم نے CUET کے 2023 کے پیپر کو آدھا سولو کیا ہے، یہ کہہ سکتے ہیں پارٹ 1 ہے، اور اس کا پارٹ 2 ہم لوگ جو ہیں وہ کل لے کے حاضر ہوں گے۔ آپ لوگ ہمیں ضرور فیڈ بیک دیجیے گا کہ آپ کو جو ہے وہ ہمارا یہ سیشن کیسا لگا۔ ملتے ہیں آپ لوگوں سے جلد ہی نیکسٹ ویڈیو میں۔ شکریہ فار واچنگ دس ویڈیو۔